Hello everyone. So today we are going to learn a new chapter, Cell a Living Life. So what is a cell? Cell is a microscopic living organism present in both we are animals, in animals also and in plants also. Cell is present there. Every part cell is there. Cell plays a very crucial role in our day-to-day life, in our y- body, and it is a living life. Yes, सेल इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स सेल एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि हम पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग. आज हम सब कुछ देखने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट. सो इंट्रोडक्शन. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर है. बेसिक स्ट्रक्चर के साथ साथ फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. Yes, it is a unit of living organism. It helps us so much. Yes, the word cell came from Latin word cellula. So the cell word came from the Latin word cellula. Plant cell was the first cell to be discovered by scientists. अभी plant cell एक पहला सेल था जो कि साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया. This is such an important sentence. Plant cell was the first cell to be discovered by scientists. Okay. Antoine van Leeuwenhoek 1674 was first to discover free living cell in pond water. अभी ये जो एंटोनी है ना, इन्होंने 1674 में पहले फ्री लिविंग सेल पॉन्ड वाटर में निकाला. अभी फॉर एग्जांपल पॉन्ड वाटर में हम एग्जांपल ले सकते हैं एल्गी का. यस, एल्गी एल्गी का हम एग्जांपल ले सकते हैं. सो एल्गी भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है. Yes, it is a microscopic organisms which help us means which helps in pond water, in water where it gets dirty. As आपने green color का देखा होगा तो green color में वहाँ पे means it is present over there. So algae helps us so much. And also let's see, Robert Brown 1831 was discovered the nucleus in cell. अभी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस निकाला था सेल में. न्यूक्लियस क्या है वो हम सब आगे देखेंगे. सो लेट्स मूव अहेड. नाउ सेल थ्योरी. सेल थ्योरी वाज फर्स्ट formulated by two बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट नहीं, बायोलॉजिस्ट. अभी कौन है वो? एमजे स्केल्डन और टी स्क्वेन. कौन से साल में? 1838 और 1839. Okay, according to them, all the plants and animals are composed of cell. उनका ऐसा मानना था कि हर प्लांट और एनिमल है वो सेल से बने हुए, एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सो इसी वजह से सेल हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट है. अभी सेल से ही हम सब लाइफ में आए हैं, ऐसा उनका मानना है. द सेल थ्योरी वाज एक्सपांडेड बाय विरचॉ. सो सेल थ्योरी 1858 में विरचॉ ने एक्सपेंड की और उन्होंने बताया कि दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. हर एक सेल एक सिंगल सेल से बनता है. अभी फॉर एग्जांपल दिस इज अ सिंगल सेल. फिर उसके मदद से दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, ऐसे सेल बनते ऐसे सेल बनते. सो अकॉर्डिंग टू देम all cell arise from pre-existing cell. Then, cell theory states that all living organisms are composed of cells. सेल थ्योरी ये कहती है कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से कंपोज हुए हैं, सेल के प्रोडक्ट से कंपोज हुए. ओके, लेट्स मूव अहेड. साइज ऑफ द सेल. Size of the cell is such an important part. So let's focus here. Largest isolated single cell in animals is an ostrich egg. Ostrich egg is an largest single cell. Yes, it is the largest single cell in animals. Animals में ये सबसे बड़ा single cell है. Longest cell in animals is nerve cell. Longest cell in animal is nerve cell. सबसे बड़ा cell जो है वो animals means even we are the animals, it is a nerve cell. The longest living cell in the human body. अभी human body so इसके भी nerve cell है. For example उसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं.
विच कैन लिव फॉर एंटायर लाइफ टाइम के लिए जो नर्व सेल है वो रहता है हमेशा के लिए. देन लेट अस मूव अहेड. The size of an organism is dependent upon the number of cell. नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड होता है ऑर्गेनिज्म की साइज कितनी है. नहीं मतलब साइज ऑफ सेल पे नहीं डिपेंड होता है. साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन नंबर ऑफ cells. Then let us move ahead. The unicellular and multicellular organisms. Okay, the organisms which are made up of single cell. Yes, the organisms which are made up of single cell is called unicellular organisms. अभी जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से बने हुए हैं, सो उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे. ओके, एग्जाम्पल बैक्टीरिया. बैक्टीरिया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. देन अमोबा, पैरामेशियम and clamodomonas. Okay, then the single cell is able to perform all life process. अभी एक सिंगल सेल हर लाइफ प्रोसेस करता है, जैसे कि obtaining of food, respiration, excretion, growth and reproduction. Okay, let us move towards the multicellular organisms. Okay, the organisms which are made up of number of cells. एक नहीं बल्कि उससे ज्यादा सेल से जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. एग्जाम्पल फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऑल द सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर. उनके पास सिमिलर स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, एंड अंडरटेक सिमिलर बेसिक फंक्शंस. एक जैसे ऑलमोस्ट एक जैसे फंक्शंस और उनके स्ट्रक्चर से. देन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. Structure of cell. Cell has connection between cell membrane and protoplasm. Cell membrane and protoplasm हम देखेंगे. Cell membrane protects protoplasm. Cell membrane जो है वो protoplasm को protects करता है और cell membrane को ही हम outermost wall भी कहते हैं. Protoplasm is the living substance in cell. Cell में एक living substance है. Then protoplasm consists of साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आते हैं. साइटोप्लाज्म सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, नॉन मेम्ब्रेनस भी हो सकता है, मतलब उसके पास मेम्ब्रेन ही नहीं. अभी हम इतने देर से प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं. प्रोटोप्लाज्म है क्या? प्रोटोप्लाज्म इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों, वो भी हमारे पास रीजन है. इट हैज प्रोटीन्स इनसाइड द लेयर्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स है, इसलिए उसे हम plasma proteins consist of proteins, and protoplasm also has small part of carbohydrate. Then ये एक important slide है. Structure of cell. Structure of cell is that plasma membrane inside cell membrane has two layer of phospholipid. अभी plasma membrane मतलब cell membrane के अंदर है, right? So cell membrane outermost wall हो गई. Am I right? It is outermost wall. Then here is a phospholipid. फॉस्फोलिपिड क्या है? लेट अस सी. फॉस्फोलिपिड के दो लेयर रहते हैं. यस, एज यू कैन सी दैट ये फॉस्फोलिपिड है. दिस इज फॉस्फोलिपिड. ये पहली लेयर, ऊपर वाली लेयर, और ये दूसरी लेयर. इट इज अ सेकेंड लेयर. और अंदर क्या प्रेजेंट है? एनीवन? अंदर आपका प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आपका क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, सो अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो अभी यहाँ पे आप अच्छे से देखिएगा. प्रोटीन चेन. प्रोटीन चेन इज दैट कि प्रोटीन अभी ये ऊपर वाली लेयर है, आउटसाइड लेयर है, और ये इनसाइड लेयर है, बाहर की लेयर. सो अंदर की लेयर से बाहर की लेयर में जाने वाला प्रोटीन, उसे हम प्रोटीन चैनल कहते हैं. और जो प्रोटीन है ना, वो अंदर दब जाता है. अभी एज यू कैन सी हियर, ये प्रोटीन है, एंड इसे ही हम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कहते हैं. देन carbohydrate chain. Even here is a carbohydrate. Yes, you can see carbohydrate. And even there are protein molecules. These are protein molecules. So here is a carbohydrate chain and here is a protein molecules. That's it. मतलब structure of cell के लिए
आपको ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, 2 लेयर है इसके, दिस शुड बी रिमेंबर, आपको ये याद रखना है। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, दो ट्रांसपोर्ट रहते हैं, वो अभी हम देखेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट। अभी कुछ मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं ग्लूकोज की। अभी ग्लूकोज जो है, इवन इट इज अ मॉलिक्यूल्स, सो वो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाते कैसे? सो दो प्रोसेस है इसके, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एनर्जी लगती है मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट होने के लिए। दैट एनर्जी, वो एनर्जी कौन सी है? एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज एनर्जी जो कि मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मदद करती है। इट हैज लो टू हाई कंसंट्रेशन, इसके पास लो टू हाई कंसंट्रेशन है, आप यहाँ से समझ लीजिएगा, लो टू हाई कंसंट्रेशन। ओके, देन एंड हैज फास्ट प्रोसेस, इसके पास एक फास्ट प्रोसेस भी, फास्ट एंड वास्ट प्रोसेस है। यूजुअली इट इज अनडायरेक्शनल, अभी जो मॉलिक्यूल्स है वो स्ट्रेट तो नहीं जाएंगे, पैरेलल मतलब स्ट्रेट लाइन में तो नहीं जाएंगे, सो अनडायरेक्शनल मतलब उनके कुछ डायरेक्शन नहीं रहते, वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाते। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट, for passive transport no energy is required, it has high to low concentration and ATP is not required, just opposite of active transport. Then let us move ahead towards types of passive transport. अभी passive transport के types कौन से? So the types are diffusion and osmosis. So diffusion is the transport from solid, liquid and gas. Diffusion solid, liquid और gas से transport होता है। And for example हम देख लेते हैं metabolic gases, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड O2। तो CO2 और O2 जैसे हम इनहेल करते, एक्सेल करते, सो CO2 बाहर निकलता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है। सो ये भी डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही होता है, इवन दिस इज डन बाय द डिफ्यूजन। देखिए, डिफ्यूजन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन कैसे होता है? वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जाते हैं प्रोटीन चैनल, प्रोटीन में से, और फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हो जाते हैं। देन लेट्स मूव अहेड, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। अभी ऑस्मोसिस के भी टाइप्स होते हैं, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस द ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल। सो एंडोस्मोसिस क्या है? ऑस्मोटिक, एकदम ऑस्मोसिस की जैसे अंदर प्रोसेस होती है, सेम प्रोसेस से एंडोस्मोसिस जाता है। बट एक्सोस्मोसिस जस्ट ऑपोजिट ऑफ द, एक्सोस्मोसिस इज ऑस्मोटिक विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम सेल और सिस्टम। विड्रॉल ऑफ वाटर उसी के प्रोसेस से जो एक्सोस्मोसिस की प्रोसेस है, उससे कुछ सिस्टम मतलब कुछ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स सेल में जाते हैं। यहाँ पे कुछ कंडीशन है, हाइपरटोनिक कंडीशन, आइसोटोनिक कंडीशन एंड हाइपोटोनिक कंडीशन। आप यहाँ पे देखोगे H2O मीन्स वाटर, H2O की जो मात्रा है वो कम है, बट हाइपोटोनिक में देखोगे तो H2O की मात्रा ज्यादा है, और वैक्यूल कम है, वैक्यूल। इवन देयर इज H2O, पर यहाँ पे H2O बहुत ही ज्यादा कम है। सुटेबल कंडीशन से जो H2O होता है उसे आप सॉल्यूशंस में क्लासिफाइड कर सकते हैं। देन एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस टेकिंग इन अ बल्क ऑफ मटेरियल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इनटू सेल। अभी सेल का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है ना, वहां से सेल कौन कौन सी चीजें लेता है? अभी फॉर एग्जांपल सेल ईटिंग प्रोसेस, सेल ईटिंग प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, जस्ट रिमेंबर दिस नेम, फैगोसाइटोसिस। सेल ड्रिंकिंग को हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस, वी क्लासिफाइड दिस एज पिनोसाइटोसिस। सी हियर फैगोसाइटोसिस, सो ये क्या है? ये सेल ईटिंग ही है ना, ये सेल ईटिंग पार्टिकल्स, ये लार्ज पार्टिकल्स है, लार्ज पार्टिकल्स है। अब आप पिनोसाइटोसिस में देखेंगे तो ये सेल ड्रिंकिंग के पार्टिकल्स है, सेल ड्रिंकिंग के पार्टिकल्स है। देन cell wall and cellulose, cell wall and cellulose, first we are going to learn about the cell wall. Cell wall is a non living and rigid structure, cell wall एक non living है और rigid structure है। cell wall सेल से जो भरी हुई जो वॉल है वो सेल वॉल। सेल वॉल अलाउज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेल वॉल जो मॉलिक्यूल्स है उनके मूवमेंट के लिए अलाउ करती है। जो अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, बाहर की जो सेल वॉल है वो सेल वॉल मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए अलाउ करती है। देन एग्जांपल्स देख लेते हैं, बैक्टीरिया,
fungi, protist, blue green alga. Plant cell wall has middle lamella. अब मिडल लैमिला क्या है वो भी हम देखेंगे. सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल. सेल मेम्ब्रेन भी रहता है, सेल वॉल भी रहती है. अभी मिडल लैमिला देख लेते हैं. कैन यू सी दिस येलो लाइन? ये येलो लाइन जो है, एज दिस इज द येलो लाइन, जस्ट सी हियर. सो ये येलो लाइन जो है ना वो सेल डिवाइड करती है. डिवाइडेशन ऑफ द सेल, इसी को हम कहते हैं मिडिल लैमिला. ये जो पार्ट है ना, दिस इज, एक मिनट, ये जो ये पार्ट को ही हम मिडिल लैमिला कहते हैं. ये आप जो देख पा रहे हो ना ये पार्ट, उसे ही हम मिडिल लैमिला कहते हैं. और उसके अंदर है प्राइमरी सेल वॉल, देन सबसे नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसमें आप ये देख सकते हो हेमिसेलुलोस, सोल्यूबल प्रोटीन, सेलुलोस माइक्रोफिब्रिल एंड पेक्टिन. सो ये सब उसमें प्रेजेंट होता है. देन फिर से वही टॉपिक. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेलुलोस. सेलुलोस इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो कि यूजुअली डाइजेस्टेड नहीं होता है. ह्यूमन बींग से भी, एनिमल से भी डाइजेस्टेड नहीं होता है. सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट. इट अलाउज द सेल ऑफ प्लांट्स, fungi and bacteria to withstand hypotonic external media without bursting. सेल वॉल अलाउ करता है जो कुछ भी प्रोसेस होती है उसमें सेल वॉल उसको परमिशन देता है. द सेल swells, building up pressure against the cell wall. Wall exerts an equal pressure. अभी सेल क्या करता है, प्रेशर बिल्ड करने का काम करता है अगेंस्ट द सेल वॉल. सेल वॉल के अगेंस्ट. सेल वॉल में भी बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं तो उसमें प्रेशर आता है. वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर. तो जो ऊपर की और नीचे की, मतलब जो पूरी सराउंडेड वॉल रहती है ना, वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट्स करती है. देन व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर. अब एक लिविंग प्लांट है जो कि वाटर लूज कर देती है ऑस्मोसिस के प्रोसेस से. वाटर रूट्स, फॉर एग्जांपल वाटर रूट्स से वो मिट्टी में जाता है. सो इट इज द प्रोसेस. देयर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट्स ऑफ सेल. कमियां, सेल की कमियां सेल वॉल से होती है. दिस फेनोमेनन इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस. इसी फेनोमेनन को हम प्लाज्मोलिसिस कहेंगे. अगर ये प्लांट सेल में होता है तो प्लाज्मोलिसिस, बट अगर ये एनिमल सेल में होता है तो उसे हम कहेंगे क्रेनेशन. Yes, we classified this as crenation. Then eukaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, ये हमारे लास्ट टॉपिक है आज के. देन यूकैरियोटिक सेल हैज अ न्यूक्लियस. इसके पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड फॉर्म लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. देखिए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस होता है. प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये सब नहीं होता है, बट यूकैरियोटिक के पास होता है. एग्जांपल देखते हैं. प्रोटोजोआ, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स. दीज आर दी एग्जांपल्स. देखिए वेसिकल, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल इवन इट इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मिक्रोफिलामेंट, गोल्गी बॉडी, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. रेक्टिकुलम इधर भी है और रेक्टिकुलम उधर भी. इधर स्मूथ है और इधर आप देखोगे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है. न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस. ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, जस्ट अ सेकेंड, ये जो पार्ट है ना, दिस इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ यूकैरियोटिक सेल बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस. इसके पास न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस रहता है. इवन सेंट्रियोल, सेंट्रियोल इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट हियर. ये यूकैरियोटिक सेल के पास तो होता है बट प्रोकैरियोटिक के पास नहीं होता है. देखते, देखो प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोट्स आर ऑर्गेनिजम्स whose cell lacks a nucleus, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, और कुछ अदर ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस के कुछ अदर पार्ट, न्यूक्लियोलस देखे और बहुत सारे. दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं हम? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा एंड माइकोप्लाज्मा. ये सब एग्जाम्पल जो है वो प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल है. सो इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल, देन देखे तो पिलस, फ्लैगेलम, प्लास्मिड, इंक्लूजन, न्यूक्लियॉड, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, फिम्ब्रे. क्या इसके पास न्यूक्लियस है?
क्या इसके पास न्यूक्लियस है? नहीं है ना। न्यूक्लियस है क्या? इट डजेंट हैव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का एक सादा पार्ट भी नहीं है इसके पास। नॉट इवन द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट ओवर हियर। इसी वजह से हम इसे प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। ओके, सो नाउ लेट अस सी द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। देखो, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियड है, सेल वॉल है, और यू इन सम यूकैरियोटिक्स, मतलब कुछ यूकैरियोटिक्स में रहता है सेल वॉल, एंड कैप्सूल प्रोकैरियोटिक्स में ही रहता है। देन फ्लैगेलम, राइबोसोम। अभी राइबोसोम इज अ कॉमन भाई, राइबोसोम और सेल मेम्ब्रेन। सो ये जो राइबोसोम और सेल मेम्ब्रेन है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो ये कैसे इंपॉर्टेंट है, लेट मी शो यू। अब ये राइबोसोम्स इसमें यूकैरियोटिक में भी है, और आप देखें तो प्रोकैरियोटिक में। सेल मेम्ब्रेन भी सेम, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सो क्या ये एक जैसे हो गए? नहीं, ये एक जैसे नहीं हो गए, बिकॉज इट डजेंट हैव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये सब नहीं है। इवन देखे तो साइटोप्लाज्म यहाँ पे भी है, और इवन यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको यूकैरियोटिक में देखेगा। गोल्गी, क्लोरोप्लास्ट, फिर माइटोकॉन्ड्रियम, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ सेल मेम्ब्रेन और राइबोसोम्स ही यहाँ पे प्रेजेंट है। जस्ट अ सेकेंड, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, सो यहाँ पे कॉमन क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज द कॉमन ईयर। सेल मेम्ब्रेन एक कॉमन है। देन राइबोसोम्स ये कॉमन है। ये बस यही आपको याद करना है। देन so that's it for today. I hope you enjoyed this video. Even the next part bhi aayega, don't worry about that. So please subscribe to our channel. Till then, bye bye, thank you.